Hi, welcome you all to the next function, next chapter, or sorry, next session of marketing, that is FYBCom marketing, marketing and salesmanship. As you all know, we have started with the third chapter and the second component of your third chapter, that is price mix. Basically, today I will be dealing with the second component of price mix, that is term of credit या फिर credit variable. Before going to the credit variable, I would like to go recall back what is price mix and what are the elements of price mix and what does price mix element consist of, and then we'll move with the term of credit as an element of price mix. Clear to it? Okay. First, what is a price? My dear students, price is nothing but when a consumer is ready to pay something for the product or the service which he or she has enjoyed or wanted to enjoy is known as price. Price is very difficult to explain in economics, but basically in simple terms price can be explained as the amount charged in exchange of product, या फिर it is an agreement between the seller and the buyer where the seller sells the product and buyer pay for the product. The amount what the buyer is ready to pay for the product is known as price. Clear to it? Okay. Example, I went to the market and purchased a Maggie of 12 rupees. I got the Maggie as a good and I am ready to pay 12 rupees. I am not negotiating with the seller that why should I pay 12 rupees. I want Maggie. He gave me the Maggie. I took the Maggie and I paid him the 12 rupees. That I am willing to pay 12 rupees. Wherein if I deny to pay 12 rupees for that product, that is not called as a price. Price is basically what the consumer is ready to pay. I took the Maggie packet and I am ready to pay 12 rupees for that. That is the price. Clear to it? Marketing people adopt certain policies with respect to price variables and it consists of various variables that are called as price mix. Price mix क्या है? एक ऐसे variables है, ऐसे tools है जो marketing वाले अपनाते हैं अपने product को market में सफलता मिलाने के लिए. तो pricing mix जो है, प्राइस मिक्स जो है ये दो वेरिएबल से बना है, मार्केटिंग के दो टेक्निक से, दो टूल से, दो मैकेनिज्म से बना है. व्हाट इज़ दैट मैकेनिज्म? दैट मैकेनिज्म इज़ बेसिकली प्राइसिंग पॉलिसी एंड क्रेडिट पॉलिसी. क्लियर टू इट? अब कल हमने जो सेशन में क्या पढ़ा था? प्राइसिंग पॉलिसी. प्राइसिंग पॉलिसी क्या है? तो प्राइसिंग पॉलिसीज आर नथिंग बट द रूल्स एंड रेगुलेशंस with respect to the price what the seller gives to the buyer and buyer is ready to pay for that. And because of the pricing policy, the strategy, the number of sales generation has increased. Pricing policies are nothing but the strategies, the guidelines what the marketer has applied with respect to price in order to increase the demand. उसमें चार variables है. First one is क्वांटिटी, डिस्काउंट. फर्स्ट उसमें है डिस्काउंट और उसमें है टर्म ऑफ क्रेडिट. क्लियर टू है? डिस्काउंट है. तो डिस्काउंट में क्या पढ़ा था हमने? डिस्काउंट इज नथिंग बट डिस्काउंट इज एन अमाउंट और द कंसेशन व्हाट द सेलर गिव्स टू द कंज्यूमर फॉर परचेसिंग द गुड्स, फॉर एनकरेजिंग हिम टू परचेज द गुड्स और सर्विस. उसके अंदर चार टाइप के डिस्काउंट्स है. फर्स्ट वन इज द क्वांटिटी डिस्काउंट, सेकेंड वन इज द ट्रेड डिस्काउंट, third one was the cash discount and fourth one was seasonal discount. Quantity discount is basically given to those buyers who are ready to purchase the goods in bulk quantities. Trade discount is basically given to the wholesalers or the companies or the industries or the firms who are ready to purchase the goods in the bulk quantity and further with an intention to resell it into the local market. Next one we have is cash discount. Cash discount is basically a discount which is given to the buyer who is ready to make the payment on spot or in a desired time limit. Seasonal discount. Seasonal discount is a discount which is given to the buyers for the coming future, for the coming season, in order to encourage the buyer to stock for the coming season. This was what? Credit डिस्काउंट्स, वेरिएबल्स ऑफ डिस्काउंट. उसमें फर्स्ट प्राइसिंग पॉलिसी था एंड प्राइसिंग पॉलिसी में है डिस्काउंट्स एंड क्रेडिट.
तो फर्स्ट वन हो गया डिस्काउंट, उसमें सेकेंड वन है टर्म्स ऑफ क्रेडिट. टुडे वी विल बी डीलिंग विद टर्म्स ऑफ. the more the sale of a product, the more will be the production of the goods. जितना सेल होगा गुड्स का उतना ही उसका प्रोडक्शन होगा. The larger the production, the more the economies of scale the firm will be able to enjoy. और जितना ही प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उतना ही लार्जर इकोनॉमी टू स्केल होगा जो फर्म एन्जॉय करता है. पहली बात क्या है, जितना सेल होगा उतना प्रोडक्शन होगा, और जितना प्रोडक्शन होगा उतना लार्जर इकोनॉमीज टू स्केल होगा जो एक फर्म एन्जॉय करेगा. इट इज़ द क्रेडिट फैसिलिटी ऑफर्ड बाय द वेरियस बिजनेस हाउसेज दैट मेनी अ टाइम takes the demand to a level where the economies to scale can be enjoyed. और बेसिकली जो कंपनीज होते हैं ना, जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो जो इकोनॉमीज टू स्केल एन्जॉय करते हैं लार्जर, वो किसके वजह से होता है? वो बेसिकली क्रेडिट पॉलिसीज़ के वजह से होता है. क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज़ के क्रेडिट पॉलिसीज़ इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड इतने अच्छी तरह से उससे डिज़ाइन किया जाता है सो दैट उसके वजह से कैश बेसिस पे जितने गुड्स सेल नहीं होते उतने गुड्स उनके क्रेडिट बेसिस पे सेल होते हैं. हायर द गुड्स सोल्ड, हायर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन. इसीलिए उनका प्रोडक्शन जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट पे होता है एंड दे एन्जॉयज मोर अमाउंट ऑफ इकोनॉमीज टू स्केल. अगर उनके क्रेडिट पॉलिसी उतने अच्छे नहीं होते तो ना उनका सेल्स उतना ज़्यादा होता और ना उनका प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होता, और प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता तो इकोनॉमीज टू स्केल भी एक फर्म उतना एन्जॉय नहीं कर पाती. Next, if the credit is not offered, then the size of the market would not increase. अगर हम क्रेडिट ऑफर नहीं करते बिजनेसेस तो मार्केट का साइज कभी भी इंक्रीज नहीं होगा. इकोनॉमीज ऑफ स्केल वुड नॉट बी एन्जॉयड, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल एन्जॉय नहीं कर सकते क्योंकि सेल बढ़ा नहीं तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा नहीं, एंड दस प्रोडक्शन वुड नॉट बी वर्थ वाइल, और इसकी वजह से प्रोडक्शन का कुछ फ़ायदा ही नहीं है. इट इज़ द क्रेडिट सेल्स दैट मेक्स प्रोडक्शन वर्थ वाइल. क्रेडिट सेल्स की वजह से ही प्रोडक्शन हमारा अच्छा होता है. दस द एक्सपांशन ऑफ मॉडर्न बिजनेस इज़ बिल्ट अप ऑन क्रेडिट. इसीलिए जो हमारा मॉडर्न बिजनेस इतना एक्सपांड हुआ है वो सिर्फ क्रेडिट पॉलिसीज़ के वजह से एक्सपांड हुआ है. देखो पहले हम अगर 10 ईयर्स बैक अगर हम लेंगे तो इतना क्रेडिट पे चीज़ें सेल नहीं होती थी. क्या हमारा मोबाइल हम क्रेडिट पे ले पाते थे? नो. क्या हम हमारा फ्रिज क्रेडिट पर ले पाते थे? नो. नाउ देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस, बजाज आलियांस, देन वी हैव HDFC banks, ICICI Bank, who are providing us loan with zero interest. Why? Because to promote the sales of the product. जितना क्रेडिट सिस्टम इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही इकोनॉमी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, एंड वंस द सेल इंक्रीजेस प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस एंड इकोनॉमीज टू लार्ज स्केल ऑल्सो इंक्रीजेस एट a benefit to the business as well as at a benefit to the banks. Clear to it? Credit is the breath of modern marketing efforts. इसलिए मॉडर्न मार्केटिंग में सबसे बड़ी जान मॉडर्न मार्केटिंग की क्रेडिट होती है. नो फर्म कैन थिंक ऑफ सर्वाइव विदाउट ऑफरिंग क्रेडिट फैसिलिटी. कोई अगर जो फर्म सोचती है कि मैं क्रेडिट पर बिजनेस करूंगा ही नहीं या करूंगी ही नहीं तो वो फर्म कभी भी लार्ज स्केल ऑपरेशंस में डील नहीं कर सकते. इट मीन्स all sale promotion, it signifies is in its combination to efficient selling. However, even though credit influence sales to a consideration extent, it should be kept in mind that it is a financial matter and the credit obligations of the business house must be kept at a prudent level. भले मॉडर्न बिजनेस की क्रेडिट जान है, मॉडर्न बिजनेस क्रेडिट की वजह से बड़ा है, भले मार्केटिंग क्रेडिट की वजह से चलता है, बट एक सर्टन लिमिट तक. वो लिमिट हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए. किसी भी बिजनेस ने वो लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए. वंस द बिजनेस स्टार्ट क्रॉसिंग द लिमिट्स ऑफ द क्रेडिट देन द बिजनेस विल नॉट बी एबल टू एन्जॉय द इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिकॉज द अमाउंट वुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स एट अ लार्ज. ऑफ द total turnover of the business houses, the credit share range anywhere between 60 to 95%. The business house grant credit to the wholesalers and the wholesalers grant credit to the retailers who in turn grant credit to the customer. In case of direct selling, credit is granted to the customer through hire purchase and installment purchase schemes. Then an organization frames its policies regarding credit depend upon the nature of the product, its marketability, class of consumers,
competitors, terms and conditions and credit facility made available by the financial institution. ऑर्गेनाइजेशन अपनी क्रेडिट पॉलिसी कौन से टर्म पर फ्रेम करता है? एक तो प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर, प्रोडक्ट के मार्केटेबिलिटी के ऊपर, फिर क्लास ऑफ कंज्यूमर्स जो ले रहे कस्टमर्स उनका क्लास क्या है, कॉम्पिटिटर्स के क्या पॉलिसीज़ है, कंडीशंस क्या है, फिर जो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे है, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए कंपनीज अपने क्रेडिट पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं. नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट वन वॉज डिस्काउंट, सेकेंड वन वॉज टर्म्स ऑफ क्रेडिट, थर्ड one is resale price maintenance. Resale price maintenance is a practice whereby the manufacturer or the distributor recommends the price and or the profit margin at which the downline channel members will sell a product. It is a policy for establishing a minimum resale price below which a wholesaler or retailer may not sell the manufactured product. इसका मतलब क्या है? जो प्रोडक्ट का मार्जिन रहता है, प्रोडक्ट का जो MRP रहता है, उसके बिलो जो जिस प्राइस पर होलसेलर या मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है वो प्राइस डिसाइडेड होता है, उसको बोलते हैं रीसेल प्राइस मेंटेनेंस. मतलब क्या, जब हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो कुछ सेट टारगेट रहता है कि मार्जिनल MRP से 10% के नीचे आना ही नहीं है. देखो, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो हम FS से खरीद देते हैं तो 100 रुपीज़ में मिलता है, बट वही प्रोडक्ट जब हम लोग MG रोड से ख़रीदते हैं तो हमें 180 में मिलता है. क्यों? क्योंकि बट अगर वही प्रोडक्ट हम कहीं और से खरीदें तो वो 100 में ही मिलेगा. वाई? बिकॉज देयर मिनिमम प्राइस विच हैज़ टू बी चार्ज इट फिक्स्ड, बट हाउ मच अमाउंट ऑफ मार्जिन टू बी केप्ट डिपेंड्स अपॉन द सेलर, डिपेंड अपॉन द मार्केट, कि वो कितना मार्केट से मार्जिन निकाल सकते हैं वो मार्केटर से के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन कुछ अमाउंट होती है, कुछ लेवल होता है जो प्रोडक्ट के मार्जिन पर MRP पर फिक्स किया जाता है कि उसके नीचे हम वो प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे. रीसेल प्राइस maintenance is designed to prevent excessive cost cutting by the intermediaries and the consequent reductions in their profit margin. Resale price maintenance the prestige of the advertiser brand and generate cooperation and mechanism support of dealer. Further, the consumer too are protected against overcharging by the middleman. रीसेल प्राइस मेंटेनेंस की वजह से कंज्यूमर्स भी प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि जो मिडिलमैन होते हैं ना वो ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते ड्यू टू दिस रीसेल प्राइस, क्योंकि उनका एक सर्टन लिमिट हो गया है. क्लियर टू इट? ओके, प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो, please study, be at home, be safe. If you have any doubts and queries, please ping me on the email ID provided to you by the college. Thank you all. Thank you. In the next session, we will be dealing with the importance of pricing या फिर objective of pricing. Clear to it? Okay. Thank you all. Thank you. Be at home, be safe.